Hello student, today in our computer science paper 1 we are going to start our new chapter, that is C++. In this chapter we are going to study about our programming language, that is C++. In this, first of all we are going to see the review of C++. Okay, in this, C++ is an object-oriented programming. C++ has developed by Bernard Stroup at AT&T Bell Laboratory in USA. Okay, this is the scientist who has developed C++, and it is an object-oriented and not the procedure-oriented. Here the main focus is on the object and not the procedure. Okay, now what are the advantages of C++? Advantages क्या क्या है C++ के? C++ is an increment version of C, or it is also called as an superset of C. Okay, it means the additional features are added to the C language, and it is also called as an superset. Also means the features of C language plus some additional feature of C++ has been added. Almost all C programs can be run in C++ compiler. Means what? The compiler for C++ and C are both same. Okay, facilities like classes, function overloading, operator overloading are added in C++. These are some these are some features that are added in C++. क्लासेस एक है, दूसरा है फंक्शन एक होता है, एक ओवरलोडिंग, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये कुछ फीचर्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे C++ लैंग्वेज के अंदर। C++ सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म यानी मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स। हम लोग यहाँ पे C++ मैनी फॉर्म्स के अंदर ये भी सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज कैन बी बिल्ड बाय C++। कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज भी हम लोग C++ के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। C++ programs can be easily implemented, maintained and expanded. C++ programs can be implemented easily, मेंटेन भी इजीली होते हैं और एक्सपांड भी, जितना बड़ा चाहे उतना इजीली हम लोग उसको एक्सपांड कर सकते हैं। Now there is some one question about distinguish between object oriented programming and the traditional programming. So we are going to see both the programming approaches. Object oriented programmings are used in languages like C++, Java and so on. In traditional programming means it is usually used in C. Okay, now first the first difference is in object oriented emphasis is on data rather than the procedure. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकसिंग करते हैं और प्रोसीजर के अंदर कम। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है कि एम्फोसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स, यानी हम लोग क्या करने वाले, क्या प्रोसीजर यूज़ करने वाले, उसके ऊपर फोकसिंग होता है। सेकेंड इज द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू एंटिटीज नॉन एज ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा वो स्मॉलर एंटिटीज के अंदर डिवाइड होता है। और यहाँ पे ट्रेडिशनल के अंदर लार्जर प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम नोन एज फंक्शन। यहाँ पे फंक्शंस के अंदर डिवाइड होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। थर्ड इज द डेटा हाइडिंग एंड कैनॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। यहाँ पे डेटा हाइडिंग का फीचर होता है और जो भी एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डेटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनल के अंदर फंक्शन टू फंक्शन डेटा ओपन होता है और वो कोई भी फंक्शन उसको यूज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे डेटा हाइडिंग का फीचर नहीं होता है। फोर्थ इज द इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, यानी यहाँ पे पहले बॉटम से स्टार्ट होता है, तो अब तक वो क्या कर, अब जाने तक वो क्या करता है, उसको प्रोग्राम को रन करता है। और यहाँ पे क्या होता है ट्रेडिशनल के अंदर, इट एम्प्लॉयज टॉप डाउन अप्रोच इन द प्रोग्रामिंग डिजाइन। ओके, this is the difference between object and the traditional procedural programming. Next we are going to see about the tokens. Okay, what are tokens?
Token means the smallest individual unit in program are known as tokens. C++ has following tokens. यहाँ पे एक small individual unit एक होता है जिसको tokens बोलते हैं. C++ के अंदर अलग अलग tokens यूज होते हैं, जैसे first is the keyword, identifier, constant, strings and the operators. ये 5 टाइप्स के टोकन्स हम लोग C++ के अंदर यूज करते हैं. A C++ प्रोग्राम इज रिटर्न यूजिंग दिस टोकन्स. ये टोकन्स का यूज करके हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज द कीवर्ड्स. देयर आर 48 C++ कीवर्ड यूज्ड. These keywords with them, these keywords cannot be used as have specified meaning associated variable name. यहाँ पे जो भी keywords दिए हुए हैं हम लोग वही keywords यूज कर सकते हैं, और ये keywords दूसरे किसी वेरिएबल नेम्स को हम लोग नहीं दे सकते. यानी ये जो 48 कीवर्ड्स है इनका कोई तो भी एक पर्टिकुलर मीनिंग दिया हुआ है. जैसे ASM है, ऑटो है, ब्रेक है, केस है, ये सभी के सभी क्या है, दिस आर कॉल्ड एज एन कीवर्ड्स जो कंपाइलर को इनका मीनिंग पता है. ओके. Next we are going to see the identifiers. Now what is the meaning of identifier? Identifier refers to the name of variable, function, array, classes etc. यानी जो भी हम लोग नाम देने वाले हमारे वेरिएबल को, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, या फिर डिफाइनिंग करने के लिए, या फिर एरे हो गया, क्लासेस हो गया, तो वो कुछ रूल्स दिए हुए, दैट इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिफायर्स. फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग द आइडेंटिफायर्स. क्या रूल्स होते हैं? ओनली अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर्स आर परमिटेड. यानी जो भी हम लोग नाम स्पेसिफाई करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एक तो कैरेक्टर हो गया, डिजिट हो गया और अंडरस्कोर. यानी स्पेशल सिंबल्स के अंदर @ $, ये यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर ही परमिटेड है. ओके. सेकेंड है द नेम कैनॉट बी स्टार्ट विद डिजिट. हम लोग जब भी नाम देने वाले हैं तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, तो सिंपल कैरेक्टर से ही स्टार्ट होने वाला है. ओके. नेक्स्ट रूल इज द अपर केस एंड द लोअर केस कैरेक्टर आर डिफरेंट. ओके. यानी अपर केस और लोअर केस ये हमेशा डिफरेंट रहेंगे. यानी हम लोग जब डिक्लेयर करेंगे कोई भी वेरिएबल नेम, तो वो अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो कैपिटल में रहेगा. अगर स्मॉल में लिखने वाले हैं तो स्मॉल में ही वो रहने वाला है. अ कीवर्ड कैनॉट बी. फोर्थ इज द अ कीवर्ड कैनॉट बी यूज्ड एज एन वेरिएबल नेम. C++ डज नॉट हैव लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर. यानी हम लोग जो भी कीवर्ड हम लोग स्पेसिफाई, जो भी कीवर्ड्स जो होते हैं, जो हम लोग ने 48 कीवर्ड्स यूज किए हैं, वो एज एन वेरिएबल नेम हम लोग दे नहीं सकते. और यहाँ पे कोई भी लेंथ का कुछ भी इशू नहीं है जो हम लोग आइडेंटिफायर्स को दे सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखने वाले व्हाट इज डेटा टाइप. Now what is the data type? A data that is stored in which type of data the data is stored. Built-in data types are integer, character, float, double and void. There are basics of fundamental data types. The modified, signed, unsigned, long, short may be applied to the character and integer data type. Okay, यानी these are the three main basic data types that are used in C++. सबसे पहले होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसके बाद में होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, और उसके बाद में होता है डिराइव्ड डेटा टाइप. ओके. फर्स्ट इज द इन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में होता है स्ट्रक्चर, union, classes and enumeration. In this year we are going to see the classes. Structure, union are used and enumeration are used in C. So C plus in this year we are going to see about the classes. Classes are the user defined data type. यानी हम लोग कौन से टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करने वाले, किस टाइप का रहेगा, वो हम लोग क्लासेस के अंदर स्पेसिफाई करते हैं. बिल्ट इन के अंदर मीन्स व्हाट, इन बिल्ट जो दिया हुआ रहेगा वही. जैसे इंटीजर मीन्स व्हाट, द इंटीजर टाइप, जहाँ पे होल नंबर्स हम लोग यूज करने वाले.
कैरेक्टर मीन्स व्हाट, द कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, यानी जहाँ पे हम लोग कैरेक्टर टाइप जहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वॉइड मीन्स व्हाट, इट इज ए नल वैल्यू, ओके, जहाँ पे नल वैल्यू हम लोग वहाँ पे स्टोर करने वाले। फ्लोट मीन्स व्हाट, फुल फ्लोट यानी वहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स जहाँ पे आते हैं वैसे टाइप का डेटा। डबल मीन्स व्हाट, इट इज द डबल फॉर द फ्लोट, ओके, फ्लोट का जो भी डबल आता है वो दैट इज द डबल, मीन्स व्हाट वहाँ पे भी डेसिमल नंबर्स ही यूज होंगे। उसके बाद में होता है डिराइव्ड, यानी जो जहाँ से डिराइव हुआ है वैसे डेटा टाइप, जैसे एरे है, फंक्शंस है एंड द पॉइंटर्स है, ओके। यहाँ पे कुछ रेंजेस दिए हुए हमारे डेटा टाइप्स के, जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता है, उसका रेंज होता है -128 टू 127। अनसाइन कैरेक्टर, यहाँ पे निगेटिव साइंस नहीं होते, जहाँ पे 1 बाइट का डेटा 0 to 255। साइन कैरेक्टर मीन्स व्हाट, -128 टू 127, उसके बाइट्स 1 बाइट स्टोर करेगा। इंटीजर, अनसाइन इंटीजर एंड साइन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर एंड अनसाइन शॉर्ट एंड अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, ऑल दी स्टोर्स फॉर द 2 बाइट्स ऑफ डेटा। यहाँ पे रेंजेस स्टार्ट होते हैं फॉर इंटीजर -27368 टू 32767। अनसाइन के लिए 0 से लेके तो यहाँ पे 65535। अगेन फॉर अनसाइन it is same as an integer, and for short integer it is also same as an integer type of range. For unsigned short it is same as an unsigned integer, okay. For signed short integer it is also same as an integer type of range. For long integer means what, it stored the double value of the integer, easily is that's why it is stores 4 byte of data, and this range will be the like this. For unsigned long, again 4 bytes of data, in this negative sign is removed and it is double the value. For float it store 4 byte of data, it stores the decimal value, so this is the range. And for double it stores the floats double value, इसलिए यहाँ पे 4 बाइट का यहाँ पे 8 बाइट स्टोर करता है, और यहाँ पे ये रेंज दी हुई है। लॉन्ग डबल यानी यहाँ पे 8 का लॉन्ग हो जाता है, यानी यहाँ पे 2 बाइट्स अगेन ऐड हो जाती है, इसलिए 10 बाइट्स यहाँ पे स्टोर करता है, और इसका रेंज दिस है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। हम लोग C++ के अंदर किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाले हैं। ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड इन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। जहाँ पे भी हम लोग हमारा वेरिएबल वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है स्टेटमेंट यूज़ करने से पहले। दे कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जस्ट बिफोर द यूज ऑफ वेरिएबल वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल, दिस मेक्स राइटिंग अ प्रोग्राम मच ईजियर। इट ऑल्सो मेक्स द प्रोग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी वो वेरिएबल यूज करने से पहले हम लोग को उसको डिक्लेयर करना है। कहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं वो मेंशन, हम लोग कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो यूज करने से पहले ही करना है, ओके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली प्रोग्राम को इजी करने से, इजी होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम ही हम लोग उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट एक्स, यानी दिस एक्स स्टैंड्स फॉर द वेरिएबल used in our program. Now which type of data it stores, that is mentioned in the data type, that is the your float, यानी x जो रहेगा मेरा, ये फ्लोट टाइप का डेटा क्या करने वाला है, स्टोर करने वाला है, यानी वहाँ पे डेसिमल नंबर्स आएंगे, ऐसा डेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, x के अंदर स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट सम इज इक्वल टू 0, यानी ये सम जो है ये फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करेगा, जिसके अंदर ये स्टोर्ड है 0। सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, यानी सबसे पहले मैंने x को मुझे यूज़ करना है मेरे प्रोग्राम में, और सम को भी यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया कि ये किस टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर करेगा। उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, सम और x का क्या किया, यहाँ पे एडिशन किया, और वो क्या किया, सम के अंदर उसको स्टोर कर दिया। फ्लोट AVE, अभी ये जब मुझे यूज़ करना है, जहाँ पे एवरेज मुझे फाइंड करके देना है,
इसलिए जहाँ पे मैंने इसको यूज करने वाला हूँ उसके बाद में, इसलिए उसको सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ओके, इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर आवर वेरिएबल्स। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स किस तरीके से हम लोग, इवन हम लोग डायनेमिकली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये स्टैटिक हो गया जहाँ पे अपर साइड में हम लोग को जहाँ पे यूज करना है, लेकिन यहाँ पे C++ परमिट्स इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एट रन टाइम ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड एज एन डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, यानी वो रन होने के वक्त भी हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये फीचर्स हैं C++ के अंदर। जैसे फ्लोट एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू आर इंटू आर, और रेडियस इंटू रेडियस, यानी यहाँ पे मैंने हमारा वेरिएबल यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, वहाँ पे मैंने उसको क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दिया। इस तरीके से अभी हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जनरली हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रेफरेंस वेरिएबल। मीन्स व्हाट, यहाँ पे द वेरिएबल प्रोवाइड रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट नेम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अलाइज नेम। यानी कोई भी वेरिएबल का दूसरा अगर मुझे उसको नाम अगर देना है तो यहाँ पे C++ हमें प्रोवाइड करता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अल्टरनेट नेम और अलाइज नेम भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। फॉर द प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, जो भी पहले डिफाइन किया हुआ है उसको एक हम लोग अल्टरनेट नेम भी दे सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मेट होता है डेटा टाइप एम्परसेंड साइन, दिस इज कॉल्ड एज एन एंड हम लोग बोलते हैं, या फिर एम्परसेंड रेफरेंस नेम। यानी पहले तो वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, एम्परसेंड साइन यूज करनी है, और वो रेफरेंस वेरिएबल का नेम क्या रहने वाला है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम। यानी वो कौन से वेरिएबल का अल्टरनेट नेम हम लोग रखने वाले हैं, तो वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 100, यानी टोटल जो है फ्लोट वैल्यू स्टोर करने वाला है, जो वैल्यू रहेगी उसकी 100। अभी मुझे ये जो टोटल वेरिएबल है इसका कोई तो भी अल्टरनेट नेम देना है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में देखते हैं डेटा टाइप कौन सा है, यहाँ पे फ्लोट। ओके, एम्परसेंड साइन यूज किया है, और रेफरेंस वेरिएबल यानी टोटल का अल्टरनेट नेम क्या रखा है हम लोग ने, सम। ओके, ये रहेगा उसका अल्टरनेट नेम इज इक्वल टू टोटल। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो भी टोटल के अंदर स्टोर रहेगा, अगर मैंने वहां पे सम ये भी अगर मैं देता हूं तो भी वो क्या करेगा, एज एन 100 ही प्रिंट करने वाला है। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल को एक अल्टरनेट नेम दे सकते हैं, डेट इज योर सम। ओके, थैंक यू।